So today we'll study dipole in non-uniform electric field. In the previous class we have discussed dipole in uniform electric field. So when there is a dipole in uniform electric field, the total force on the dipole will be 0 and the net torque may or may not be 0, and that depends upon the angle between P and your E. Clear? If angle between P and E is 0 or 180 degree, then dipole will be in translational equilibrium, and if theta is 0, then the equilibrium will be stable, and if theta is 180 degree, your equilibrium will be unstable. Clear? So today we will study dipole in non-uniform electric field. Clear? So सब ठीक हो? शुरू करें ना? So this is, let us assume this is the electric field and that is non-uniform. That is so this is the electric field and this electric field is non-uniform. Non-uniform electric field. So what? Here density of field line is larger and here density of field line is smaller. So consider 2 points. Let us assume your dipole is over here, plus q charge is over here and minus q charge is over here, and the separation is twice of A. So what? Clear? So let us assume this is point A and this is point B. So electric field at point A is EA. So EA is the electric field at point A. And EB is the electric field at तुम लोग लिखते चलो, अगर मैं समझा नहीं रहा ये सब तो लिखते चलो. So AB is called electric field at point B. Clear? And you know density at A is larger, smaller than density at D. Means EA is less than EB. Clear? Because NA is less than NB. Clear? So density electric field at point B is larger than electric field at point A. Means if FA is the force acting on charge minus Q, and FB is the force acting on charge plus Q. So your FA is equal to QE, QEA, and FB is equal to QEB. Since your EB is greater than EA, FB will be greater than FA. Clear? So force acting on minus Q charge will be larger than force acting on plus Q charge. Clear? So if you are keeping a dipole in non-uniform electric field, there must be always some force acting on the dipole, because electric field at the 2 point or electric field near the two charges is different. Clear? So there will be a force different and force can't be 0. So what? Conclusion is that if you are putting a dipole in the non-uniform electric field, force will be always non-zero. So conclusion, if you are placing a dipole in non-uniform, दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, then summation F will not equal to 0. Clear? So force will never become 0 if your dipole is in the non-uniform electric field. Your torque may or may not, but your force will be always non-zero, because electric field is different in different places. Clear? So the two charges are experiencing different types of field. Like someone is
experiencing large amount of field or someone is experiencing less amount of field. So what? But there is a electric field difference, so there is a force difference, so force can't be zero. Got my point? Got my point? कैमरा ऑन करो यार, कोई दो चार यार, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता मुझे, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? ये क्लियर? लिखो जल्दी लिखो। कर लिया बाबू? कर लिया? कर लिया? ये डन? डन? सो बहुत लकी हो तुम लोग, लाइट आ गया, लाइट आ गया। So if your for non-uniform electric field summation F will never become 0. Your torque may or may not. Your torque for non-uniform electric field summation tau may or may not be 0, and that will depends upon and that will depends upon and that will depends upon the angle between that will depends on angle between P vector and E vector. Clear? Clear? P vector and E vector. Example, consider an example. Force will be never 0. Force, keep in mind, if your dipole is non-uniform electric field, force will be never 0. Force के बारे में सोचना ही नहीं है, force हमेशा नॉन जीरो होगा। Your torque may or may not be 0, and that will depends upon the angle between P and E or the direction between E and P. Let us consider an example. There is a point charge over here Q. There is a point charge over Q, and there is a dipole over here. So there is a plus charge and there is a minus charge. Clear? There is a plus charge and there is a minus charge. So what? And this is the length of dipole, and this separation is R. Clear? So E plus Q, electric field at plus Q charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught, Q upon R square. Q upon R square. Clear? And if you are talking about force, so F plus Q is equal to E 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Clear? And electric field दिख रहा है ये अंकित? And an electric field at minus Q charge E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus twice of L square, and force on minus Q charge F minus Q will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus twice of L square. Clear? Since your R square is less than R plus twice of L square, means your electric field E plus Q will be greater than E minus Q. So force on plus Q charge will be greater than force on minus Q charge. Again the two forces are different, so force can't be 0. Let us think about torque. Let us think about torque for this case. Clear? So you know torque is equal to P cross E, dipole moment into electric field. अब क्या होगा? यहाँ होगा you know torque is equal to summation, total torque is equal to summation tau ना, यानी कि tau at positive charge and plus वेक्टर साइन प्लस tau at नेगेटिव चार्ज। इसके लिए क्या होगा? P क्रॉस E या P क्रॉस E डालेंगे। अब इसके क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? वही फॉर्मूला लगाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ना, यानी कि इस पे किधर टॉर्क देखो तो क्या हो गया यार? टॉर्क देखो ना, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका किधर है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? इधर ही होगा ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर ही होगा। क्लियर? या यहां से भी थिंक अबाउट दिस P क्रॉस E and that is equal to PE sin of थीटा। सो लेट अस डायरेक्शन ऑफ E, मैग्नीट्यूड को भूल जाओ, डायरेक्शन ऑफ E देखो, E का डायरेक्शन किधर है बेटा? डायरेक्शन ऑफ E इज
दिस डायरेक्शन ऑफ E एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ P इज, डायरेक्शन ऑफ P किधर है, इधर ना, सो द एंगल इज 180 डिग्री, सो sin 180 डिग्री इज, sin 180 डिग्री इज 0 ना, सो फॉर दिस केस योर टॉर्क इज 0, फॉर दिस केस योर टॉर्क इज 0। इसके केस में क्या होगा, टॉर्क 0 होगा, गॉट माय पॉइंट। इसके केस में क्या होगा, टॉर्क 0 होगा, गुड। कंसीडर एक अदर एग्जांपल, अदर जहां पहले लिखो, इसको लिखो, सो फॉर दिस केस योर टॉर्क विल बी 0। तुम ऐसे भी कर सकते हो, मान लो को फोर्स लगेगा यहाँ, इस फार्मूला से भी लगोगे तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ डाइपोल यहाँ होगा, क्लियर, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो अब देखो यहाँ फोर्स एक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, फार्मूला क्या होता है बेटा टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लस q चार्ज विल बी व्हाट, इन दिस डायरेक्शन ना, अगर यहां से ले लो, यहाँ प्लस, बाबू यहाँ q चार्ज है तुम्हारा सोर्स, यहाँ क्या डाइपोल है प्लस q, यहाँ है माइनस q, so force acting on this plus charge will be in this direction and force acting on this minus charge will be in this direction. So line of action of force is this na, line of action of force is this, and the axis of rotation is this na, this is the axis of rotation, this is the axis of rotation, and this is the line of axis, line of action of force. So what, your formula of torque is perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. So this is your axis of rotation, this is the axis of rotation, यहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब देखो लाइन ऑफ फोर्स किससे पास कर रहा है बाबू, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है ना, योर लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो द गैप बिटवीन द टू इज 0 ना, अगर गैप 0 होगा तो फार्मूला क्या होगा, 0 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसके लिए क्या हो जाएगा, E प्लस Q प्लस 0 इनटू E माइनस Q इनटू Q। ये बात समझ की नहीं, ये क्लियर हुआ कांसेप्ट, यहां क्लियर हुआ ये कैसे हो रहा है। देखो इसको देखो, इसको, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इसका टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क प्लस क्यू, टॉर्क ऑन प्लस क्यू चार्ज होगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, तो दोनों कंसाइड कर रहा है ना, तो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन इज कंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उनके बीच का गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है, 0 ना, तो 0 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इससे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, E प्लस Q इनटू Q ना, अरे यही वाला F यार, 0 इनटू F प्लस Q, ये हो गया। अब देखो टॉ माइनस चार्ज, टॉ माइनस चार्ज कितना होगा, 0, अगेन ये भी इसका भी गैप 0 है, और कितना होगा F माइनस Q, टोटल टॉर्क क्या है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी टॉर्क क्या है, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया ना। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट, क्लियर। सो तुम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, एंड दिस इज द नाइस वे, सिंपल वे। अगर नहीं तो थोड़ा सा और घुसना है, डीप में जाना है, सो इंडिविजुअली टॉर्क फाइंड करो एंड टेक देयर सम, एंड टोटल टॉर्क इज 0, देयर इज नो एनी टॉर्क। क्लियर, गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट, दिस इज वेरी इजी। ये बेसिक कांसेप्ट है 12th 11th क्लास। चलो करो, जल्दी करो। So this is the first case, this is the first case, and for this case your force is non-zero and your torque is 0. Force is non-zero but your torque is 0, and discuss some other case where your force is non-zero and your torque is also non-zero. Clear? Your torque is also non-zero. तो पहले लिखो इसको, फिर बताता हूँ। डन बेटे, डन, डन कर लिया, ये कर लिया सबने, ये कर लिया, गुड। So what? Conclusion is what? Conclusion is what? If your dipole is in non-uniform electric field, then total force will be 0. If your dipole is in non-uniform electric field, total force will never be 0. And if direction of electric field and electric dipole moment are in the same direction, then torque will be 0. Clear? So if your dipole, if dipole is in non-uniform electric field, then
then summation F will never be 0, but summation torque will be 0 if dipole moment and electric field are in the same direction. Same direction means your angle may be 0 or 180 degree. You may also write parallel or anti-parallel. Parallel and anti-parallel. Clear? If dipole moment and electric field are parallel or anti-parallel, the torque will be 0, but your force will be never 0. Consider other case. This is your charge. Second case. Here, this is your charge plus Q charge, and this is your dipole. Here is a plus Q charge and here is a plus Q charge and here is a minus Q charge. Clear? Here is a plus Q charge and here is a minus Q charge. Clear? This is the center of dipole. So what? This separation is, let us say this is R1 and this is R2. So what? Force acting F plus Q will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R1 square. Clear? And direction will be this. So this will be direction of force acting on plus Q charge, and F minus Q, force acting on minus Q charge will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2 square, but direction will be this now. So this. Is that okay? Clear? So what? F plus Q will be larger than F minus Q, implies your force summation force can't be 0. Now think about torque. So what? Torque is what? Torque is perpendicular distance of line of action of force from particular distance line of action of force from axis of rotation into force. So what? Think about this. Your force acting on this will be in this direction. So this is the direction of force. Clear? And here this is the direction of force. Clear? This is the direction of force. And also and this is your center. This is the axis of dipole. तो होगा क्या बाबू? अब देखो perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. यानी axis of rotation ये है और ये बाबू line of action of force इसका है और ये line of action force इसका है. आगे बात समझ. तो यहाँ से perpendicular distance क्या होगा? यहाँ से perpendicular डालोगे ना यहाँ. Clear? Perpendicular distance. This should be perpendicular ना. Perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. Is that okay? Got my point? Clear? Let us say this is x1, and for this again this is the line of action of force. So perpendicular distance क्या होगा? यहाँ से ये, and let us say this is x2 and this is 90 degree. So yeah, for this your torque will be tau plus q. Torque acting on plus charge will be equal to x1 into F plus q, and tau minus q is equal to x2 into F minus q. अब देखो, since F2 they may have different direction. अगर different direction होगा तो क्या होगा? Subtract करोगे. same direction होगा तो क्या होगा? Add करोगे. अब देखो, अगर add करते हो subtract करते हो, the two forces are different ना. इनका addition या subtraction कभी 0 हो सकता है क्या? कभी 0 हो सकता है. The two forces are different. अगर मान लो कि दोनों का x सेम हो भी गया, मान लो कि x1 is equal to x2, but still these two quantities are different ना. Plus F plus q and F minus q, force acting on plus q charge and force acting on minus q are different. तो मान लो कि देर में कोई डायरेक्शन, दो केसेस होंगे, वेक्टर साइन लेके कर लेना. ये करा दो अभी मैं डायरेक्शन दिखा के, कर लोगे ना ये सब. मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मैथमेटिक्स पेपर में आएगा नहीं. जस्ट रिप्रेजेंटेशन की तुम्हें फील आया, समझ आया. क्लियर? देख लेना. अगर मान लो देर इन सेम डायरेक्शन, केसेस क्या होगा कि tau plus q और tau minus q are in the same direction. Then total tau summation tau will be never 0. Summation tau will be never 0. दूसरा केस हो सकता है बेटा, if
प्लस टी क्यू एंड माइनस टी क्यू आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी क्या होगा इनका समेशन टॉप क्या होगा बाबू, तभी नॉन जीरो होगा, क्योंकि दीस टू क्वांटिटी आर डिफरेंट ना, सेम होता तब ना उनका सब्ट्रैक्शन क्या हो कैंसिल आउट कर देता। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, क्लियर, गॉट माय पॉइंट। सो इफ योर डाइपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, your force will never be zero, but your torque may or may not be zero. Torque will be only zero when your P and E are in the same direction, and if they are in the they are in not same direction, then your torque will never be zero. Got my point? Got my point? Clear सबको ये concept? आ रही है? ऐसा कुछ मैथमेटिक्स नहीं आता है, क्वेश्चंस लॉजिकल आते हैं खाली, अगर आएगा भी तो सोर्स चार्ट देके करेगा। क्लियर, और ये तरीका करने का तुम कर सकते हो। चलो जल्दी लिखो। बोलिए। अरे सुनो, ये फिगर बना लिया सबने, ये फिगर बना लिया, ये जितना फिगर बनाया ना इसका मुझे फोटो चाहिए थोड़ा सा, देखो इसमें ना तुम लोग, ये फिगर सही लग रहा, ये फिगर जो मैंने बनाया, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर दिखाया, आ इधर है, ये सही लग रहा है तुम लोगों को फिगर? इसके केस में तो चलो सही है, लाइन ऑफ एक्शन। हाँ सर, जो प्लस क्यू से वो जो फोर्स का लाइन दिखाया है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, किस है सब इधर जाएगा सर, क्योंकि वो सर नीचे की साइड, ये प्लस है तो रिपेल करेगा तो ऊपर ही जाएगा ना सर। तो स्मॉल वाले क्यू से ना जो स्मॉल वाला क्यू है उसमें बड़े वाले क्यू पे ना फोर्स लग रहा है, तो उस इधर तो आएगा ना, वो भी रिपेल करेगा लेकिन इस साइड करेगा। हमें इस पे देखना है, इस पे, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा ना, हमें लाइन ऑफ एक्शन फोर्स चाहिए। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब along which force is acting। इसके केस में तो चलो सही, इसके केस में सही लग रहा है, ये आर का डायरेक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स है सर, ये सही है, ये दिखाओ बताओ, ये वाला सही है। तुम लोग सब ना फिगर बनाया हो ना, अभी फोटो खींच के मुझे ग्रुप पे डाल देना है ना, कभी कभी डांटना भी जरूरी है तुम लोगों को। फोटो खींच के जो ये से टेपे हो ना यहाँ से, इसका ना फोटो खींच के डालोगे, देखता हूँ मैं क्या समझ रहे हो तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो, है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये है कि नहीं? ग्रुप पे डालोगे सब, क्लियर? अरे फोर्स विल ऑलवेज अलोंग द आर ना, जिधर आर होगा उधर ही फोर्स लगेगा यार, क्लियर है? जिधर फोर्स लगेगा उधर ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। मैं तो चलो कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें ध्यान देना चाहिए ये सब, जो देखो जो गलत है वो गलत है, चाहे सुबह रियलाइज हो चाहे शाम को रियलाइज हो, जो गलत है वो गलत है। सुबह हो सकता है कि तुम मान लो सही है, लेकिन शाम तक फील होना चाहिए कि वो गलत है कि नहीं? देखो मुझे सबका फोटो चाहिए, अगर देखो दिस इज योर सोर्स चार्ट, क्लियर, और ये डाइपोल यहाँ था अपना, प्लस क्यू यहाँ था और माइनस क्यू यहाँ था। बाबू ये क्या था, यही लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या है, ये आर है ना, क्लियर, R1 था, इसको हमने बोल दिया था R2। तो यार इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर ही लगेगा, और इस पे फोर्स ये लॉन्ग R लगेगा ना, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यही होगा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन यही होगा ना। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, सब सही कर रहे हैं फिगर, हाँ कर लो कर लो, सही हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, यहां से हम देंगे, क्लियर, आ रही है बात समझ, क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से हम लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से हो जाएगा। अब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या होगा बाबू, ये x1 हो जाएगा, और यहां से डालोगे तो क्या होगा, ये x2 हो जाएगा। इधर कहीं परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहां से ये 90 डिग्री और यहां से ये 90 डिग्री, और ये x2 हो जाएगा। एंड दिस इज द एक्चुअल फिगर, मैंने पहले ही वही बनाया था, बस मैंने मेरा मिल नहीं रहा था, टेढ़ा हो गया था कर्व मेरा, ठीक है, कर्व मिल नहीं रहा था। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस ना, है कि नहीं? यहाँ जो भी गलती है ना उसमें तुम्हारी भी इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, खाली मेरी नहीं होगी, है कि नहीं? सो अब 12th को इतना पता है तुम्हें, क्लियर, डन? आप कर लिया सबने, कर लिया ना सबने? चलो आगे करा रहा हूँ मैं।
ये फिगर बना लेना है, दिस इज एक्चुअल फिगर। पहले वाले में कुछ पैरेलल नहीं मिल रहा था, बाकी सब सही था। हाँ हाँ, किसके डाल दिया? चलिए अब देखो, कंघी करते हो बाल में, पता ना बचपन में किया होगा, खेला होगा, मतलब कंघी तो अभी भी करते होगे, लेकिन खेला होगा बचपन में। कंघी करने के बाद ना पीस ऑफ पेपर ले करके और उसको ऐसे करोगे ना तो द कम विल अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। किया है सबने? किया है ना? किया है ना? करे हो तो थंब अप करो, करे हो नहीं करे तो आज करो, है कि नहीं? करना जरूरी है सब चीजें, है कि नहीं ना? स्टूपिड होना जरूरी है, जितना स्टूपिड उतना ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करोगे, जितना ज़्यादा स्मार्ट यू आर ग्रैबिंग लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज, है ना? स्टूपिड लोग ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, स्मार्ट लोग कम लेते हैं, क्योंकि वो ना अधजल गगरी छलकत जाए, झरी गगरिया चुपके जाए, है कि नहीं? तो अगर स्टूपिड बनोगे तो कोई ज्ञान दे देगा, बुरा नहीं मानेगा। स्मार्ट बनोगे फिर ज्ञान देना भी होगा ना, रास्ता ले लेगा वाला। क्लियर? 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 सो कम करने के बाद पीस ऑफ पेपर लेते हो और फिर ऐसा करते हो तो देन दैट कम विल अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। क्लियर? तो एक्सप्लेन करना व्हाई, कौन एक्सप्लेन करेगा? कम कर लेते हो और फिर एक पीस ऑफ पेपर लेते हो तो उसमें से पीस ऑफ पेपर क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाई दिस इज हैपनिंग? कौन करेगा एक्सप्लेन? यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कर सकते हैं उसके। देखो मैं करा रहा हूँ, और ये इसके कराने के बाद एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं सब? एनसीईआरटी पढ़ते हो? समझ आ रहा है एनसीईआरटी? मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ आता है कि नहीं, ये बताओ? समझ आता है? थंब अप करो, पढ़ते ही नहीं हो तुम सब। बहाना ये भी है कि बुक नहीं मिला, लॉकडाउन में बुक कहाँ से मिलेगा? मूवी डाउनलोड हो सकता है, पीडीएफ नहीं डाउनलोड होगा बुक का। करो, बुक पढ़ो, एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो। बोर्ड में अच्छा कर रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ो। क्लियर? सो 8 देखो होता क्या है। सो a comb attracts the piece of paper, क्लियर? ये बोर्ड में आ जाए, मान लो एक्सप्लेन व्हाई, क्लियर? एक्सप्लेन करते हैं अपन, इजी है, दैट इज वेरी इजी। सो दिस इज योर कॉम, कैसे बनाते हैं कॉम? कैसे बनाते हैं? अरे पता है मुझे, देख बना लेता हूँ। ये कॉम है, ये उंगली फंसा के ऐसे कंघी कर रहे तुम, तो दिस इज कॉम, क्लियर? ये कॉम है, क्लियर? अभी ये यूज नहीं हुआ, नॉट इन यूज, तो यूज में नहीं है, मीन्स टोटल चार्ज Q इनिशियल इज 0, Q इनिशियल इज देयर इज नो एनी चार्ज। क्लियर? अब क्या, ये तुम्हारा छोटा भाई या बहन है, क्या करा रहा है उसको? क्लियर? कम लगाओ उस, कम लगाओगे, ये बाल है इसका, तो तुमने अब इसको क्या बनाना है? इसके हेयर पे स्पाइक्स बनाने हैं, है ना? स्पाइक्स बनाने हैं, कंघी ऊपर ऐसे कर दोगे, ये स्पाइक्स हो गए इसके। हाँ, सो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन हियर एंड द कम। अरे कम लगाया करोगे ना ऐसे, सो देयर इज फ्रिक्शन between comb and here. Clear? So someone is losing electron and someone is getting electron. Someone is losing and someone is getting. Clear? So there will be transfer of electron. There will be a transfer of electron between comb and हेयर। अब ये नहीं बताओगे कि कौन ट्रांसफर करेगा, बस एज्यूम कर लो। सो लेट अस एज्यूम कॉम्ब इज गेटिंग सम पॉजिटिव चार्ज। लेट अस एज्यूम योर
comb is getting some positive charge after friction. So comb is getting some positive charge after friction. Clear? अब देखो होगा क्या, बहुत सी चीजें यहाँ से बहुत सी क्वेश्चन राइज हो सकती हैं। कम करते हो तो कम करते टाइम क्या होगा कि तुम बियर फुट हो या शूज पहन के कर रहे हो, मान लो कि छोटा भाई या बहन है उसको तैयार करा रहे हो, कम कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम पैर में कुछ नहीं डाला, सो देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन अर्थ एंड यू। क्लियर? या दूसरा चीज होता है कि क्या करोगे कि जूता पहन के कर रहे हो, यानी कि देयर इज इंसुलेटर बिटवीन यू एंड द अर्थ। दो केसेस हो सकते हैं। क्लियर? यू नो आवर बॉडी इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर देखो कम के केस में क्या होगा, कम है तो तुमने जूता पहन के किया कम ऐसे। क्लियर? तब भी क्या होगा, इस पर नेट चार्ज होगा। अगर तुमने जूता बिना पहने किया तब भी क्या होगा, नेट चार्ज होगा इस पे। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि योर अर्थ इज द good conductor of electricity and that is also the source of electron and potential of earth is always zero, and if you are connecting any charged object with earth there will be a transfer of charge from earth to object or object to earth. Clear? are ये बात समझ? got my point? Clear? got my point? तो देखो ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहां से कहां होता है। मैंने इंसुलेटर और कंडक्टर कराया था, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड conductor. So अब देखो, if there is insulator and you are giving some charge to the insulator, that will never distribute over the surface or in the bulk. किसी insulator को जो भी चार्ज दोगे, if this is the insulator and now you are giving charge over here or you are putting charge over here, अगर insulator है यहाँ पर चार्ज रखोगे ना तो that will not distribute, वो वहीं का वहीं रहेगा। Clear? There is no any distribution of charge in insulator. insulator के केस में जहाँ चार्ज रखोगे वहीं पर क्या होगा, वो स्टक कर जाएगा, स्टे करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। So charge on insulator does not distribute, but in case of conductor charge will distribute। अगर कंडक्टर है इस पर चार्ज दोगे that will distribute in the on the surface, पूरे surface पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज will distribute, चार्ज will क्लियर। अब देखो किसी ऑब्जेक्ट को और से कनेक्ट करोगे, क्लियर, सो द पोटेंशियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो, और पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी जीरो। यही कंडीशन, चार्ज जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो होगा क्या, मान लो कि तुम कम कर रहे हो, भाई को कम कर रहे हो ऐसे, क्लियर, अब तुमने कोई मतलब तुम बेयर फुट हो, मतलब कुछ पैर में नहीं डाला है कि नहीं, कुछ पैर में नहीं डाला, यानी देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द अर्थ ना। अब कम ऐसे कर रहे हो, अब कम करोगे तो क्या होगा, कम यहाँ यहीं तक, दिस पार्ट ऑफ द कम is connecting with the hair ना, and this part are not ना, यही कनेक्शन होगा ना हेयर में, यानी कि यही पार्ट क्या होगा, खाली चार्ज गेन करेगा, इधर का पार्ट नहीं करेगा। यू नो कॉम इज मेड अप बाय प्लास्टिक एंड दैट इज द इंसुलेटर, दैट इज द इंसुलेटर। अब कम का ये जो पोर्शन है वो चार्ज इसको मिल गया, इसको चार्ज नहीं मिला, यू नो दिस इज द इंसुलेटर। अगर कहीं भी किसी पोर्शन पर अगर चार्ज जाएगा दैट विल नेवर डिस्ट्रीब्यूट ना, वो जहां पर चार्ज है वहीं पे स्टक करेगा। तो अब तुमने कम कैसे किया, एंड दैट इज इंसुलेटर, तो इतना पार्ट क्या है, कनेक्टेड हेयर में, तो यही वाला चार्ज गेन करेगा, इधर वाला चार्ज नहीं गेन करेगा। एंड यू नो दिस इज इंसुलेटर, तो चार्ज विल नेवर डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज इधर आएगा ही नहीं। तो तुम जूता पहन के कहीं करो या पैर पहन के कहीं करो, क्लियर, सॉरी जूता पहन के या बिना जूते का, चार्ज विल नेवर ट्रांसफर, क्लियर। यानी कि अर्थिंग का यहाँ रोल कोई है ही नहीं, कुछ है नहीं, बिकॉज दिस इज इंसुलेटर और चार्ज यहाँ से तुम्हारा बॉडी पे आएगा ही नहीं। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। अगर यही रॉड लेके कर लो, आयरन रॉड ले लो, कंघी क्या हो, लोहे की लो, कंघी क्या हो, लोहे की लो, ले लो। जो पेंटिंग करने वाली ब्रश आती है ना, एक होता है, एक ब्रश होता है लोहे का जो जंग छुड़ाता है, वो कोरोजन है ना, रस्टिंग वस्टिंग को मतलब आयरन को साफ करना होता है, लोहे का ब्रश आता है, उससे कंघी करो एक बार, स्टिल देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम एंड द हेयर। लेकिन उसमें केस में दैट इज द कंडक्टिंग, उसमें क्या होगा, उसको लेके पीस ऑफ पेपर करो, देयर इज नो इंपैक्ट, वो अटैक करेगा ही नहीं, तो उसका चार्ज क्या हो गया, तुम्हारे बॉडी में चलेगा, तो बॉडी से अर्थ में चलेगा, पोटेंशियल बिकम जीरो, चार्ज बिकम जीरो। Got my point? Got my point? Clear? So this is clear. So we are here. So your comb is a plastic, and you are rubbing the comb and the hair, and we are assuming that your comb is getting some positive charge due to friction. Clear? अब होगा क्या बाबू? ये तुम्हारा comb है. Clear? ये तुम्हारा comb है.
ये तुम्हारा कॉम्ब है। अच्छा पहले तो लोग ना जेब में कॉम्ब भी रखते थे, तुम लोग देखे हो कभी किसी को रखते हुए जेब में? हाँ पता नहीं क्या था वो, बताओ दुनिया अलग था, पता ना वो रखते हैं कि नहीं, अभी कुछ लोग रखते हैं। ठीक है, पता नहीं कहाँ, हमेशा डेटिंग मोड पे ही रहते हैं, क्या कोई मिल जाए डेट पे चले जाएंगे लेके उसको, है कि नहीं? क्या पर्पस है कि नहीं? हाँ और ऐसे मारते रहते थे कंघी बीच बीच में, जहाँ कुछ देखा कंघी मारते थे। इससे बढ़िया ना, इसीलिए देखो कॉम ले पैकेट में हमेशा कॉम लेके चलते थे ना, इसको ओवरकम करने के लिए जेल आए, फिर जेल लगा के फिर स्पाइक बना लो जैसे बना लो, फिर कॉम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, लड़कियों के पर्स में भी होता है ये सब, लड़कियां ज्यादा लेके घूमती है। हाँ सो दिस इज योर कॉम, दिस इज योर कॉम, क्लियर? सो बाबू इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो दिस वन हैव सम पॉजिटिव चार्ज और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर? एंड नाउ देयर इज अ पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, क्लियर? अब ये पीस ऑफ पेपर है, क्लियर? सो व्हाट दैट इज पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर एंड दिस पीस ऑफ पेपर इज मेड अप बाय एटम्स, एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, क्लियर? तो होगा क्या, देयर विल इंड्यूस चार्ज ऑन दिस पीस ऑफ पेपर ना, इस पे चार्ज इंड्यूस होगा इंड्यूस चार्ज, होगा इंड्यूस चार्ज, इसको होगा ना पीस ऑफ पेपर पे चार्ज इंड्यूस। अरे थंब को ऑफ करो, ये क्लियर हो रहा था, चार्ज विल इंड्यूस ऑन द थंब ऑन द पीस ऑफ पेपर ना, अब चार्ज इंड्यूस हो गया बाबू, क्लियर? अब चार्ज इंड्यूस हुआ तो चार्ज मान लो एक पीस ऑफ पेपर ले लो, ये इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया, अब क्या कहते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस साइड विल बिकम नेगेटिव चार्ज एंड दिस साइड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? क्लियर? अब आधा पार्ट में करो तो क्या होगा, हाफ बिकम्स नेगेटिव एंड हाफ बिकम्स पॉजिटिव। सो व्हाट दे आर लाइक डाइपोल ना यार, देयर इज अ माइनस चार्ज ओवर, देयर इज अ प्लस चार्ज ओवर, दे आर समथिंग लाइक डाइपोल ना, ये डाइपोल की तरह ही है ना, योर पीस ऑफ पेपर एक्टिंग एज ए डाइपोल, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, आ रही बात समझ? सो दिस पीस ऑफ पेपर इज एक्टिंग लाइक ए डाइपोल, क्लियर? एंड this dipole is in the electric field produced by this comb is producing electric field around itself now, and this dipole is in that electric field and also this is producing non-uniform electric field now. As you are going far from the comb, your field strength is decreasing, your field strength is decreasing, means your comb is producing a non-uniform electric field around itself, and that dipole is in that non-uniform electric field, means that dipole will experience net amount of force, कि अब जिधर फोर्स लगेगा उधर क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू, here electric field strength is larger and here electric field strength is smaller, got my point, got my point? तो देखो यहाँ में क्या है, बढ़िया से ये दिख रहा है, ये बोर्ड का पार्ट दिख रहा सबको इधर, ये चलो लिखो एक बार में और कराऊंगा, लिखो इसको, हो गया बेटे? डन बाबू डन, क्लियर? ये लिख लिया सबने, क्लियर? सो तो बाबू देखो इधर है कॉम, piece of paper, there is a plus minus charge, plus charge, means this is acting as a dipole, acting as a dipole, let us say this is point A, this is point B, so clear? So what, EA will be greater than EB, so AFA will be greater than AFB, clear? And force acting on this point A will be in this direction and force acting on this point B will be in this direction. So force acting means FA will be in this direction and FB will be in this direction, and since your effect of this one is larger, means net force delta F, which is FB, FA minus FB will be in this direction ना. So what, net force acting on the piece of paper will be in this direction. So what, ये कहाँ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा और स्टक कर जाएगा. Got my point? Got my point? Clear? So ये है, जल्दी लिखो इसको, एक है ना, ये क्या लिखोगे, ये कर लोगे, मैं इरेज कर रहा हूँ मैं, फोटो खींच लेना, ये कर लोगे ना खुद से,
कर लोगे? चलो लिखो जल्दी, 1 मिनट लिखो पर जल्दी। ठीक है बाबू, ठीक है, गुड। हाँ कोई नहीं। तो अब क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड हो गया। क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस गॉस लॉ। क्लियर? गॉस लॉ भी चलेगा 3-4 दिन। इधर पेशेंस रखो, चलेगा आराम से। पूरी ये इलेक्ट्रोस्टेट तुम्हारा चलेगा 2 महीना, आप सब मान के चलो। ये चैप्टर हाँ चलेगा, अभी पोटेंशियल सब चलेगा। मुश्किल से 6-7 महीना तो फर्स्ट पार्ट चलेगा तुम्हारा। अच्छा एक और बात है बाबू, अगर देखो किसी को लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा मतलब, तो तुम बोल देना यार, तुम्हारे खुशी में मेरी खुशी है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा, सिलेबस का टेंशन नहीं लो। सिलेबस देखो टीचर का हाथ में होता है, सिलेबस तो करा ही देगा। बढ़िया टीचर करा देता है सिलेबस, जैसे तैसे वो करवा देगा वो, ठीक है। उसके नहीं ऐसा थोड़ी है। तो अगर किसी को लग रहा होगा ऐसा कि मतलब ज़्यादा हो रहा या थोड़ा कम है ना, तो तुम बोल देना, मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हो गया या थ्योरी ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या 11 बच्चा है पता नहीं क्यों, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है तो कम कर सकता हूँ मैं, है ना। जितना अच्छा लगे उतना ही करेंगे। लेकिन ये बेसिक है, ये इतना जानना जरूरी है, इतना जानना जरूरी है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो कोई नहीं, बता रहे हैं। सो एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल is kept in non-uniform, मत बोलो non-uniform electric field, it experiences, क्लियर? ये बाबू एम्स में आया था, एम्स 2003, clear? And the options are a force and a torque. B option, a force but not a torque. C, a torque but not a force. And D, neither a force nor a torque. Tell me the right answer. देख लो क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, a force and a torque। सोच लो। 4 नंबर यूज करोगे सीधा के बाद बताओ। और कोई? सोच लो। और कोई? अंकित? और कोई? हाँ नाम बता। हाँ शादी। और कोई बताएगा? और बताओ बेटे, और बताओ। कोई नहीं बताएगा? अजीम, अभिषेक, सृष्टि, स्नेहा, रुफैदा, प्रियंका, बताओ। पढ़ लो एक बार, जल्दी बताओ। अभी कराया था थोड़ी देर पहले। अजय ऑप्शन है, अजय बोल रहा ऑप्शन है। और कोई? सो ऑप्शन ए, मेरा भी ऑप्शन है, मेरा भी ऑप्शन है। क्योंकि जो फोर्स और टॉर्क क्या होगा, लगेगा उस पे फोर्स। ये क्या है, पहले फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, जबकि गलत है। फोर्स तो लगेगा, एक टॉर्क कभी लग सकता है कभी नहीं लगता है। ये सीधा बोल रहा है कि नहीं लगेगा, तो ये गलत है।
ये क्या बाबू, ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, ये तो सीधा सीधा गलत, ये तो आंधा आदमी बता दे गलत है। नाइदर ए फोर्स नॉट ड्रग, ये भी गलत है, सो ये इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन करो। क्लियर, इरेज करूं, इरेज करूं, क्लियर। सो second question, an electric dipole is placed in an electric field generated by a पॉइंट चार्ज। ये बाबू ये भी आया था PMT, A the net electric force on the dipole must be 0, B option, the net electric force on the dipole may be 0, C the torque on the dipole due to the field, due to the field must be 0. D option, the torque on the dipole due to the field may be 0। बताओ, हाँ बोलो, कौन बोला ऑप्शन, बोलो, जानवी बोलो, बोलो जानवी। ऑप्शन डी, जानवी डी। नेक्स्ट, और कोई? श्रुति डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो बाबू, जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाओगे ये क्वेश्चन करने में। नीतीश डी। महावीश, चलो डी। और कोई? अंकित डी। डी बोले हो कि क्या बोले, ये बोले हो? और मेरा भी डी, मेरा भी डी है। सो द नेट इलेक्ट्रिक, ये करो यार, ये किसको, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0, सीधा गलत है। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी 0, कभी नहीं हो सकता। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं भी हो सकता है। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू फील्ड मे और मे नॉट बी 0, दिस इज राइट आंसर। अब एक बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ये हो गया, ये